So in the plant water relation, we have discussed many principles like diffusion, osmosis, imbibition. We have discussed the absorption of the water. We have discussed the transport of water. ठीक है, ये सभी जो है फैक्ट होते हैं या प्रिंसिपल्स होते हैं विच आर द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन. प्लांट के जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, cellular respiration, opening of flowers, spread of the odor, okay, seed germination, opening and closing of stomata, so these different vital processes, all of these physiological processes are regulated by the movement of water, and the movement of water is different in different processes and different according to different principles. For example, the opening of flowers is also maintained by the turgidity of water. Opening and closing of stomata is also maintained by the by the turgidity of water. Okay, photosynthesis is also maintained by the water. During the process of photosynthesis, they are indirectly linked. There is a gaseous exchange between the oxygen and carbon dioxide that occurs through the plant water relation. तो इसीलिए हमने सारे फैक्ट्स को, कहाँ पे डिफ्यूजन होता है, स्प्रेडिंग ऑफ ऑर्डर इज डिफ्यूजन. ओके, सीड जर्मिनेशन में इम्बिबिनेशन भी होता है और ऑस्मोसिस भी होता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में, प्लांट के अंदर वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है फ्रॉम रूट टू स्टेम टू अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक लीव्स, that is also water regulated. So everything is just based on the plant water relations. That's why we have discussed many principles. Next हम physiological function बात करते हैं after the transport and absorption. That was the opening and closing of stomata. This we have also discussed previous day. एक बार फिर से repeat कर देता हूँ. As I told you earlier or the previous day, that stomata are just the pores present on the upper surface of the leaves. ठीक है, leaf एक organ है anatomically. Leaf is a organ. Leaf is having two faces. It is a bifacial organ. Okay, so generally on the epidermis of leaves means the uppermost part. जब भी leaf की suppose ये thickness है किसी भी leaf की, so thickness पे anatomical tissues दिखते हैं. लीफ का टिश्यू जब हम ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से ड्रॉ करते हैं. एक अपर एपिडर्मिस होती है, एक लोअर एपिडर्मिस होती है, बीच में मेसोफिल सेल्स होते हैं या कॉर्टिकल सेल्स होते हैं, और वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम फ्लोएम. ठीक है, तो जो एपिडर्मिस है इसके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. मोर कॉमनली और मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लोअर एपिडर्मिस, यानी कि जो लोअर फेस है, लोअर फेस पे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं. This experiment we will also do in the practical work, in the plant physiology practical work. स्टोमेटा की फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करते हैं हम, पील को जो है पील ऑफ करके. अपर सरफेस पे भी स्टोमेटा होते हैं. अब ये स्टोमेटा क्योंकि लीफ के ऊपर प्रेजेंट है, रूट या स्टेम पे नहीं, तो ये मेनली टू प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं. वन इज द ट्रांसपिरेशन एंड वन इज द ट्रांसपिरेशन, अनदर इज द गैसियस एक्सचेंज. Since gases are very important component for the photosynthesis and respiration, that's why stomata play a crucial role. Transpiration भी बहुत ज्यादा necessary है क्योंकि transport of water जो है transport या absorption नहीं हो पाएगा अगर transpiration का process नहीं होता. That also we have discussed in the passive absorption as well as the passive transport of water. तो stomata simply tissue है, it means group of cells हैं, group of cells है stomata, it means tissue है. और कौन से टिश्यू सिस्टम में प्रेजेंट है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में. ठीक है, दो तरह की सेल्स होती है, गार्ड सेल्स और सब्सिडरी सेल्स. तो नेसेसरली गार्ड सेल्स तो प्रेजेंट होंगी होंगी.
इस तरह से होती है बेटे एक गार्ड सेल। गार्ड सेल्स आर किडनी शेप्ड इन डायकॉट्स, डंबल शेप इन मोनोकॉट्स। ठीक है, किडनी बीन या किडनी शेप होती है डायकॉट्स में, डंबल शेप होती है मोनोकॉट्स में। गार्ड सेल्स के एजेस पे यहाँ पे एक शीथ लाइक झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनको माइक्रोफाइब्रिल्स बोलते हैं इनके। ठीक है, सिमिलरली पेयर में होती है ये। दिस इज द अनदर गार्ड सेल। ठीक है, दो गार्ड सेल्स कंबाइंड होकर स्टोमेटा बनाती है। माइक्रोफाइब्रिल्स क्लोज रहते हैं आपस में। दिस इज स्टोमेटा क्लोज। अब फिजियोलॉजिकली स्टोमेटा क्लोज है। जब स्टोमेटा को ओपन होना हो तो स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या आएंगे? स्टोमेटा के अंदर टर्जिडिटी इंक्रीज हो जानी चाहिए। व्हेनेवर द टर्जिडिटी इज इंक्रीज्ड, then the guard cells will separate or they will stretch and the microfibrils will separate apart. During turgidity the stomata open. This fact we have to remember. एक चीज हमें याद रखनी है, जब टर्जिड होंगे तब स्टोमेटा ओपन होंगे, जब फ्लैसिड होंगे या नॉर्मल होंगे, जब टर्जिडिटी नहीं है तब स्टोमेटा क्या होंगे? क्लोज रहेंगे। ठीक है, अब किसी भी तरह से इसमें वाटर आया, इट मींस वाटर आने से क्या हुआ? टर्जिडिटी इंक्रीज हुई। तो टर्जिडिटी की वजह से ये सेल्स स्ट्रेच हो जाते हैं। सरफेस एरिया जो यहाँ पे ज्यादा था, ठीक है, वो सरफेस एरिया अब टर्जिडिटी की वजह से एलोंगेट करेगा गार्ड सेल्स को। जैसे ही गार्ड सेल्स एलोंगेट होंगी तो इनके माइक्रोफाइब्रिल्स अंदर की तरफ एम्बेड हो जाएंगे। ठीक है, ये गार्ड सेल्स पहले इस तरह से थी, अब टर्जिडिटी की वजह से और स्ट्रेच हो गई। दूसरी गार्ड सेल भी स्ट्रेच हो जाएगी, ये उसके माइक्रोफाइब्रिल्स हैं। Now the stomata become open. So very simply, whenever the turgidity increases, stomata opens. Next, I have just discussed why this turgidity was increased. So for increasing turgidity of any cell, when the turgidity will be increased, when the water will move inside. वाटर अगर किसी सेल में आएगा तभी तो टर्जिडिटी इंक्रीज होगी। इसको उल्टा दिखाएंगे। ठीक है, वाटर सेल में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? एंडोस्मोसिस हो रहा है। एंडोस्मोसिस किस तरह के सॉल्यूशन में होता है? चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से। एंडोस्मोसिस किस तरह के सॉल्यूशन में होता है बच्चे? यस, 57 से अपना कह रही है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जब कोई सेल प्लेस है, प्लांट सेल, बाहर सॉल्यूशन में वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है या वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, हम कंसंट्रेशन ही कह लेती है, चलिए सिंपल वर्ड्स में हम बात करते हैं। पानी की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, सेल में कम है। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑस्मोसिस, लॉ ऑफ वाटर पोटेंशियल, द वाटर मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। तो बाहर सॉल्यूशन से पानी अंदर आएगा सेल के अंदर। ठीक है, तो एंडोऑस्मोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से टर्जिडिटी बढ़ती है, क्योंकि टर्गर प्रेशर पानी के आने की वजह से ही लगता है। यस अलका, यू आर राइट। तो एंडोऑस्मोसिस हुआ कब हुआ? जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक होने का मतलब है कि गार्ड सेल्स के अंदर टर्जिडिटी हम बढ़ा रहे हैं। तो गार्ड सेल्स की जो सराउंडिंग सेल्स हैं, इनको सब्सिडरी सेल्स भी बोला जाता है बेटा, कंपनी सेल्स या सब्सिडरी सेल्स। इनके अंदर पानी ज्यादा है समहाउ, किसी भी तरह से, और गार्ड सेल्स के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, सो गार्ड सेल्स हैविंग लो वाटर कंसंट्रेशन, तभी तो पानी अंदर आया। अब वाटर कंसंट्रेशन लो कब होगी? जब सॉल्यूट बढ़ा दिए जाएं। ठीक है, इफ सॉल्यूट्स आर वेरी मच inside the guard cells, then the concentration of water will be decreased, क्योंकि solutes dissolve हो जाएंगे solution में, solvent को eliminate करेंगे, water को कम करेंगे। ठीक है, अब main reason I will term it X रीजन के लिए, वो रीजन क्या है जिसकी वजह से solute की concentration guard cells के अंदर बढ़ती जा रही है? डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने डिफरेंट व्यूज दिए। ठीक है, so we study 3 theories
फॉर द इंक्रीज ऑफ सॉल्यूट कंसेंट्रेशन। भाई गार्ड सेल्स के अंदर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन क्यों इंक्रीज हो गई, उस चीज को समझाने के लिए 3 थ्योरीज दी गई। थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस, थ्योरी ऑफ स्टार्च शुगर कन्वर्जन, एंड थ्योरी ऑफ एक्टिव पोटेशियम पंप थ्योरी, और थ्योरी ऑफ एक्टिव पोटेशियम पंप। कल तीनों पढ़ाए थे, वेरी क्विकली मैं समराइज करता हूं। फोटोसिंथेसिस थ्योरी, वैन मॉल्ट ने कहा कि गार्ड सेल्स जब फोटोसिंथेसिस करती हैं, ठीक है, एवरी प्लांट सेल कैन अंडरगो फोटोसिंथेसिस, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, तो उन्होंने कहा कि गार्ड सेल्स जब फोटोसिंथेसिस करती हैं देन दे प्रिपेयर सॉल्यूट्स, वो शुगर्स बनाते हैं, शुगर्स की वजह से सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। ये बात ठीक है, बट उनका रिजेक्शन ये था, ऐसा हो सकता था अगर शुगर सच में बनते, बट शुगर बनते ही नहीं गार्ड सेल्स के अंदर, क्योंकि उनका क्लोरोप्लास्ट इनएक्टिव या पुअरली डेवलप्ड होता है। केवल मेसोफिल सेल्स का क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एक्टिव होता है, वहीं पे फोटोसिंथेसिस होता है। स्टार्च शुगर कन्वर्जन में कहा कि स्टार्च डे टाइम में शुगर्स में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर्स डिसॉल्व होती है वाटर के अंदर, स्टार्च इनसोल्यूबल है, शुगर सोल्यूबल है, ध्यान रहे, ठीक है। तो स्टार्च शुगर्स में ब्रेक डाउन हो गया लाइक ग्लूकोज में, और उसने क्या है डिसॉल्व होके सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन को, वाटर की कंसेंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया, जिस वजह से सॉल्यूट बढ़ गए। हमें तो रीजन ये बताना है ना, बाकी तो सब कॉमन पाथवे है। अगर सॉल्यूट बढ़ जाएंगे तो अपने आप क्या होगा, पानी आ जाएगा, दिस वी हैव डिस्कस्ड। So those theories were also rejected because starch does not convert into the sugars. Starch intermediate compound malic acid में degrade होता है, ना कि sugars में। The most accurate theory was the active potassium pump theory. Levitt एक scientist थे, इसीलिए उसको Levitt active potassium pump theory भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि एक्चुअली पोटेशियम आयंस का रोल होता है, ठीक है, गार्ड सेल्स की फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग को मेंटेन करने के लिए। So this theory we will study in detail now. Okay. If in 8 marks this is asked that describe the physiology of stomata, so only you can describe the Levitt active potassium pump theory, or it's your choice if you are having well enough time, so you can also discuss the rejected theories. The question may be directly asked that discuss the Levitt active potassium pump theory for the opening and closing of stomata. बेसिक्स क्लियर है ओपनिंग एंड क्लोजिंग का? भाई बताइए, जो अभी मैंने बताया। ओके चलिए फिर लेविट थ्योरी डिस्कस करते हैं। लेविट एक्टिव पोटेशियम पंप थ्योरी, लेविट साइंटिस्ट थे, लेविट एंड रेशके, दो साइंटिस्ट थे। इन 1974 उन्होंने मोस्ट एक्यूरेट थ्योरी बताई फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। उन्होंने कहा कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में रोल होता है पोटेशियम आयंस का। केटायंस हैं, ठीक है, कौन से केटायन? पोटेशियम आयंस मेनली, along with the pH, CO2 concentration, light, etc. भाई पीएच का भी रोल है, CO2 का भी, बट मेनली पोटेशियम आयंस का रोल है रेगुलेट करने में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। बोर्ड पे थोड़ा ज्यादा ही लाइट है, मैं एक बार इसको एडजस्ट कर देता हूं। उन्होंने बताया कि okay, so the most accurate theory for the opening and closing of stomata was given by the Levitt, that was called the Levitt active potassium pump theory. Levitt and his colleague Rashke in 1974 they proposed this theory. According to this theory, they said that there is the main role of potassium ions rather than the conversion of starch, sugar or the photosynthesis that were rejected earlier. So the main role of potassium ions is there in regulating the opening and closing of the stomata. What they stated is that when the stomata ions enter the guard cells,
These are the closed stomata. Microfibrils are very nearer to them. When the potassium ions enter the guard cells, okay, so entry of the potassium ion leads to the opening of stomata. This was the conclusion. Whenever the guard cells acquire potassium or the potassium enter inside the guard cells, the stomata open. Whenever the potassium ions efflux from the guard cell, जब भी बाहर जाते हैं potassium ion, stomata again closes. This was stated by the Levitt. Okay, that how the potassium ions are regulating. Once the potassium ions are coming inside, the guard cells become turgid or the guard cells become open. Means stomata become open. When the guard cells efflux or exit out from the guard cells, the stomata become closer. So how these potassium ions only can regulate the opening and closing, that we will discuss in detail. So let's just discuss the opening first, or during the daytime. The stomata are open during the daytime. For this topic, I have also uploaded a lecture in previous night. ठीक है, शायद आप में से कुछ लोगों ने देखा भी होगा. इस टॉपिक के लिए मैंने प्रीवियस नाइट में एक लेक्चर भी अपलोड किया है बेटा, पीपीटी लेक्चर. जो भी कन्वीनियंट लगे वहां से समझ लेना, ड्यूरिंग दिस लेक्चर और फ्रॉम दैट लेक्चर ऑल्सो. सो डे टाइम में जनरली क्या होता है गार्ड सेल्स के अंदर, फर्स्टली जो स्टार्च होता है, द स्टार्च ब्रोकन डाउन इनटू द मैलिक एसिड. डायरेक्ट ब्रेक डाउन नहीं होता, पहले शुगर्स में ब्रेक डाउन होता है, हेक्सोज शुगर्स में. देखिए अगर शुगर में ब्रेक डाउन हो रहा है फिर तो स्टार्च शुगर कन्वर्जन थ्योरी जो है वो वैलिड हो गई. शुगर्स केवल आपका क्या है, एक टेम्परेरी प्रोडक्ट है. शुगर्स तुरंत जो है चेंज हो जाती है मैलिक एसिड में. किस तरह से चेंज होगी, सपोज ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं हम, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे मैलिक एसिड में. 4 कार्बन कंपाउंड होता है मैलिक एसिड, C4, हाइड्रोजन 6 होते हैं एंड ऑक्सीजन 5. मैलिक एसिड में चेंज होता है एक तो, प्लस वाटर रिलीज होता है. सो वेरी फर्स्ट स्टेप जो हमें याद रखना है वो ये कि स्टार्च का ब्रेकडाउन हो रहा है मैलिक एसिड में, ना कि शुगर्स में. ठीक है, अब गार्ड सेल्स के अंदर स्टार्च जो था पहले, ये स्टार्च ब्रेकडाउन हो गया मैलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स में. जब तक ये मैलिक एसिड है तब तक भी सॉल्यूट कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रही गार्ड सेल्स के अंदर. ठीक है, फर्दर ये मैलिक एसिड क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है. फर्दर ये मैलिक एसिड भी ब्रेकडाउन होगा. ठीक है, मैलिक एसिड ब्रेकडाउन या मैलिक एसिड हम कहेंगे क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है खुद ही. मैलिक एसिड ब्रेकडाउन होता है बेटे अपनी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में. एनायंस अलग हो जाते हैं, कैटायंस अलग हो जाते हैं. अल्काइल ग्रुप हम दिखाएंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो टर्मिनल पोजीशन पे है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं. ठीक है, इस तरह से जो है COH, CHOH, सॉरी इसमें ये होता है CH डबल बॉन्ड CH और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप. इधर ड्रॉ करता हूं. ठीक है, इस तरह से मैलिक एसिड होता है. तो 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बाकी अल्काइल चेन है, इसलिए मैंने इसको दिखा दिया R कार्बोक्सिलिक ग्रुप, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप. तो ये डिसोसिएट हो रहा है मैलिक एसिड, एक तो मैलेट एनायंस में. ठीक है, दिस इज मैलेट एनायन. क्योंकि डीप्रोटोनेटेड हो गया, प्रोटॉन्स रिलीज हो गए मैलिक एसिड से, तो 2 प्रोटॉन्स रिलीज हो जाते हैं. First step, starch was broken down into the malic acid. First step. Second step, the malic acid is dissociated into the malate anions. बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है बेटा ये, आगे मास्टर्स में भी काम आती है. ठीक है, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी आती है.
और प्रोटॉन्स में। दिस इज द डीप्रोटोनेटेड मैलिक एसिड। ओके, नाउ गार्ड सेल्स में, गार्ड सेल्स में प्रोटॉन्स भी आ गए। मैलेट एनायन को सपोज मैं नेगेटिव चार्ज से दिखा रहा हूं, और मैलेट एनायंस भी हैं। ओके, अब जब हम ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, तो एक थ्योरी आती है आयन एक्सचेंज थ्योरी। सम आयंस आर एक्सचेंज विद द आयंस ऑफ सिमिलर चार्ज। तो जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन एक्सचेंज होते हैं पोटेशियम के साथ, तो क्या होगा, प्रोटॉन्स जो है वो बाहर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका को ट्रांसपोर्टिंग हो रही है, एक साथ दो चीजों का ट्रांसपोर्ट होगा। प्रोटॉन्स जा रहे हैं बाहर सेल से, गार्ड सेल से प्रोटॉन्स बाहर की तरफ जा रहे हैं। इनके एक्सचेंज में, प्रोटॉन्स के एक्सचेंज में पोटेशियम आयंस अंदर आते हैं। सिमिलर चार्ज है भाई, पोटेशियम भी कैटायन है और प्रोटॉन्स भी कैटायन है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है बेटा, ये दिस ट्रांसपोर्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव का मतलब एटीपी खर्च होते हैं। दूसरा आप लोगों ने सुना होगा सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, कैरियर प्रोटीन है, पंप्स होते हैं, पंप के थ्रू ही प्रोटॉन बाहर जा रहे हैं, पंप के थ्रू ही पोटेशियम अंदर आ रहे हैं। तो दिस पंप इज एक्टिव पंप, इसीलिए इसको एक्टिव पोटेशियम पंप बोलते हैं, क्योंकि ये लेके किसको आ रहा है, इन्फ्लक्स किसका करा रहा है, पोटेशियम आयंस का इन्फ्लक्स करा रहा है, इसीलिए एक्टिव पोटेशियम पंप ऑफ थ्योरी हमने बोला है। तो थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टार्च ब्रेकडाउन हुआ मैलिक एसिड में, देन मैलिक एसिड डिसोसिएट हुआ, फिर जो आपके प्रोटॉन्स हैं दे वर एक्सचेंज्ड विद द पोटेशियम। प्रोटॉन्स बाहर गए, पोटेशियम अंदर आ गए। अब गार्ड सेल्स के अंदर क्या आ गए, पोटेशियम। ठीक है, अगर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो क्लोरीन आयंस भी आते हैं आयोनिक बैलेंस बनाने के लिए। फिलहाल तो केवल एक्सचेंज हो रहा था, प्रोटॉन्स के बदले आपका ये अंदर आए जा रहे थे। अगर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज लगता है, सेल को मेंटेन नहीं होता, तो फिर क्लोरीन आयंस भी आ सकते हैं, ये भी हम ध्यान रखेंगे। यानी एक्टिव पोटेशियम पंप थ्योरी में क्लोरीन आयंस भी आते हैं और पोटेशियम भी आते हैं। इन पोटेशियम्स को एक्यूमुलेट कराने के लिए, सेल के अंदर गाइड करने के लिए एक हार्मोन हेल्प करता है, दैट इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन होता है, सभी ने सुना होगा, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, जैस्मोनिक एसिड, ये सब कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। ठीक है, साइटोकाइनिन जो कि मेनली सेल डिवीजन कराता है, वो यहाँ पे हेल्प कर रहा है इन पोटेशियम आयंस को आने के लिए, क्योंकि जब पोटेशियम आते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तभी स्टोमेटा ओपन होते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा स्टार्च ब्रेकडाउन हुआ मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड डिसोसिएट हुआ और प्रोटॉन्स एक्सचेंज हो गए किसके साथ, पोटेशियम के साथ। ड्यू टू दैट पोटेशियम आयंस एक्यूमुलेटेड मोर इनसाइड द गार्ड सेल्स। अब ये पोटेशियम आयंस क्या करेंगे, इस मैलेट एनायन के साथ, ये जो मैलेट एनायन है इसके साथ रिएक्ट करेंगे और पोटेशियम मैलेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। पोटेशियम मैलेट कॉम्प्लेक्स बना देंगे गार्ड सेल्स के अंदर। ये सपोज एक गार्ड सेल्स है, ये मैं पोटेशियम मैलेट कॉम्प्लेक्स दिखा रहा हूं। अब सेल एक सॉल्यूशन की तरह एक्ट कर रही थी, पहले उसमें सॉल्वेंट ज्यादा था, सॉल्यूट्स नहीं थे। पोटेशियम मैलेट कॉम्प्लेक्स एज ए सॉल्यूट बिहेव कर रहा है। तो इसका मतलब गार्ड सेल्स के अंदर क्या बढ़ा, वाटर कंसंट्रेशन या सॉल्यूट कंसंट्रेशन, बताइए चैट बॉक्स में। प्रीति मुझे मैसेज कर देना डायरेक्ट, ठीक है। 111 में अटेंडेंस मार्क कर दूंगा, अटेंडेंस के लिए मैसेज कर देना। ओके, आई एम गेटिंग द आंसर्स। सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ी क्योंकि पोटेशियम मैलेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब क्योंकि सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ गई तो अपने आप क्या होगा, वाटर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई। सराउंडिंग सेल से वाटर आएगा गार्ड सेल्स में, गार्ड सेल्स विल एक्वायर वाटर, वाटर आने की वजह से टर्जिडिटी बढ़ जाएगी। टर्जिडिटी बढ़ने की वजह से माइक्रोफाइब्रिल्स सेपरेट हो जाएंगे, स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। दिस वाज द ओपनिंग मैकेनिज्म गिवन बाय द लेविट। लेट्स जस्ट क्विकली समराइज इट। सबसे पहले डे टाइम में, लाइट में, ठीक है, लाइट में सबसे पहले स्टार्च मैलिक एसिड में चेंज हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट मैलिक एसिड डिसोसिएट हो गया मैलेट एनायंस में और प्रोटॉन्स में, ठीक है। फिर प्रोटॉन्स के बदले पोटेशियम आयंस
एक्यूमुलेट हुए गार्ड सेल्स के अंदर, ठीक है। पोटेशियम आयंस प्लस मैलेट एनायंस ने कॉम्प्लेक्स बना लिया, यानी सोल्यूट्स बना लिए। सोल्यूट बना लिए तो वाटर कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो गई, वाटर कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो गई तो एंडोस्मोसिस हो गया, एंडोस्मोसिस हुआ तो टर्जिडिटी बढ़ गई, टर्जिडिटी बढ़ी तो स्टोमेटा ओपन हो गए, ठीक है बेटा। यही तो हमने पढ़ा ना, जब टर्जिड हो जाते हैं गार्ड सेल्स, जब भी टर्जिड होते हैं तो स्टोमल पोर ओपन हो जाता है। एक चीज और हम ध्यान रखेंगे, ब्लू लाइट का रिस्पॉन्स कई बार पूछा जाता है। ब्लू लाइट के रिसेप्टर्स होते हैं क्रिप्टोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम्स जो होते हैं, या जब ब्लू लाइट आती है तब स्टोमेटा ओपन होते हैं, वो ओपनिंग को प्रमोट करता है। वो किस तरह से प्रमोट करता है? एक तो ब्लू लाइट जो होती है वो एबीए को इनहिबिट करती है, एबीए को इनहिबिट करती है, इनहिबिट का निशान होता है बेटे, ब्लू लाइट इनहिबिटिंग एबीए, दिस इज द सिंबल ऑफ इनहिबिशन। तो एबीए जो करता है वो स्टोमेटल क्लोजर के लिए रिस्पॉन्सिबल, अभी हम क्लोजिंग में पढ़ेंगे। एबीए को अगर क्लोज जो है इनहिबिट करता है तो वो ओपनिंग को अपने आप प्रमोट करती है ब्लू लाइट, ठीक है। तो ये भी पूछी जा सकती है। सेकंड, कौन सा हार्मोन प्रमोट करता है ओपनिंग को? बताइए, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स ओपनिंग? चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से। चलिए अब हम बात करते हैं क्लोजिंग की। मींस ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होता है? नाइट के टाइम में देखिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यूटिलाइज नहीं हो रही प्लांट से इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इज नॉट बीइंग डायरेक्टली यूटिलाइजिंग, सो दिस CO2 एंटर्स इनटू द गार्ड सेल्स, गार्ड सेल में एंटर करती है CO2। स्टोमेटा जो कि ओपन है, ओके, द CO2 एंटर्स, वहां पे वाटर है, वाटर तो है ही तभी तो ओपन है भाई, तो वो बनाते हैं कार्बोनिक एसिड, एसिड बन जाता है, एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एसिडिक मीडियम हो जाता है गार्ड सेल्स के अंदर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड H2CO3 बाय रिएक्शन ऑफ द CO2 एंड वाटर, एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो जब एसिडिक मीडियम हो गया तो एसिडिक मीडियम प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ ABA, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। CO2 ज्यादा थी, एसिडिक मीडियम बना, एब्सिसिक एसिड बना। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? एक तो ब्लॉक करता है पोटेशियम की इंटेक को, पोटेशियम इंटेक ब्लॉक कर रहा है, प्रोटॉन्स की इफ्लक्स को ब्लॉक कर रहा है। मीडियम को एसिडिक रखना चाहता है तो प्रोटॉन्स को वहीं रखना चाहता है, प्रोटॉन्स का एक्सचेंज रोक दिया, ठीक है। जो प्रोटॉन के बदले पोटेशियम आ रहे थे, यानी प्रोटॉन एक्सचेंज नहीं होंगे तो पोटेशियम भी नहीं आएंगे, प्लस जो पोटेशियम है उनको बाहर भेज रहा है, यानी नए तो आएंगे आएंगे नहीं, और जो है ऑलरेडी उनको भी बाहर भेजता है एब्सिसिक एसिड। अब पोटेशियम अवेलेबल नहीं है तो मैलेट एनायंस फ्री रहेंगे, ठीक है, वो वापस अपने प्रोटॉन्स के साथ मिलके मैलिक एसिड बना लेंगे, ठीक है, जो अगेन स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सॉल्यूट कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, जो बढ़ती जा रही थी वो वापस डिक्रीज हो गई। ऑलरेडी बहुत ज्यादा पानी है गार्ड सेल्स के अंदर, बहुत ज्यादा पानी है क्योंकि गार्ड सेल्स टर्जिड थी, अभी हमने देखा था डे टाइम में टर्जिड थी, तो वाटर कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। अब सराउंडिंग सेल से ज्यादा पानी गार्ड सेल्स में है राइट नाउ, बिकॉज एक तो कंपैरेटिवली सॉलिड कंसेंट्रेशन कम हो गई, तो वाटर वापस बाहर चले जाएगा, ठीक है। तो गार्ड सेल्स जो टर्जिड हैं, whenever they will lose water, जब भी एक्सोस्मोसिस हो जाएगा तो ये वापस टर्जिड नहीं रहेंगे, तो वापस अपनी शेप में आ जाएंगे, ठीक है। ये माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, तो वापस से अपनी शेप में आ गई, स्टोमेटा क्या हो गए? क्लोज हो गए। ठीक है बेटा, क्लियर है। क्लोजिंग भी ABA हार्मोन इनहिबिट करता है,
ABA को डॉर्मिन या स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है। ड्रॉट कंडीशंस में जब बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है तो एक्सेस ऑफ ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए स्टोमेटा का क्लोजर कर देता है एब्सिसिक एसिड। हमने अभी देखा एब्सिसिक एसिड जो है स्टोमक क्लोजर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। So this was the Levitt active potassium pump theory, both opening as well as the closing. I don't think so that there will be any problem. You can watch the recorded lecture as well as this lecture that I have just dictated. So this is all for Levitt active potassium pump theory.